Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is going to be 20th lecture of Unit 1, that is Computer Systems of Computer Science first year, and the topic we are going to cover in this lecture is the continuation of phases of SDLC, and this is going to be part 6. Part 1, 2, 3, 4, 5 हम previously lectures में already cover कर चुके हैं. And the topic number or the topic index number for this particular topic in your textbook is 1.4.1. This is going to be again the same slide which we have already covered in the last 4 to 5 lectures. It's all about the phases of SDLC. इसमें basically ये देखेंगे कौन सी phases जो हम already cover कर चुके हैं previous lecture में, और आज के lecture में हम कौन सी phase of SDLC जो है वो cover करने जा रहे हैं. So जो green में है वो हम already cover कर चुके हैं, and the last जो D जो है green में है वो हम आज के lecture में cover करेंगे. बाकी की जो white में जो हैं वो हम इंशाल्लाह next coming lectures में cover करेंगे. So the defining phase, defining the problem, that was the very first phase of SDLC हम cover कर चुके हैं. Planning phase was the second phase वो हम cover कर चुके हैं. The feasibility phase was the third phase. The fourth one was analysis, and the fifth one was requirement engineering phase. All these 5 phases of SDLC we have covered in the previous lectures. In today's lecture we are going to discuss the design phase of SDLC. So that's why the agenda of today's lecture is to cover page number 24, that is the design phase of SDLC. Design phase of SDLC, of course, that is again one of the very important phase of SDLC. सारी की सारी phases SDLC की वैसे ही सारी की सारी बहुत important हैं. They are owing their own significance and value, but first line तो हम लिख देते हैं कि this is one of the very important phase of SDLC. अच्छा, अब डिज़ाइन फेज से आपको आइडिया हो रहा होगा कि बेसिकली डिज़ाइन फेज़ में हम डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, क्या डिज़ाइन करेंगे हम? बेसिकली जो भी सिस्टम या जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसका आर्किटेक्चर बेसिकली हम डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द सिस्टम आर्किटेक्चर इज़ प्लान्ड and designed, okay, and the detailed specifications are created based on the requirements gathered during the analysis phase. Analysis phase was the previous the phase of SDLC. Analysis phase में हमने जो भी analyze किया था, जो भी हमने requirements gather की थी about the proposed system or software. अब design phase में हम क्या करेंगे? हम उस सिस्टम की या उस सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, या उसकी डिज़ाइनिंग को प्लान करेंगे. इसके लिए डिफरेंट मॉकअप्स भी बनाए जाते हैं, डिफरेंट यूज़र इंटरफेसेस. बेसिकली इसमें ना डिज़ाइनर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, UI UX पे काम किया जाता है. हम ज़्यादा उसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे बिकॉज इसमें आपने बेसिकली सिस्टम आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना है. सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आर्किटेक्चरल फेज ऑफ SDLC. Okay, we will talk about two important things and the tools we have used for the design phase, and that is the first one is UML. UML stands for Unified Modeling Language. हम basically UML को यूज़ करते हुए डिज़ाइन करते हैं अपने proposed system या सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को. ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ द डिज़ाइन पैटर्न्स. डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होता है मैं अभी आपको नेक्स्ट आगे चल के इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, सो अभी तक जो हमने बात की वो ये बात की कि बेसिकली जो प्रपोज्ड सिस्टम या सॉफ्टवेयर था उसका आर्किटेक्चर प्लान होगा एंड डिज़ाइन किया जाएगा. ठीक है, एंड दैट वुड बी एज पर द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस जो कि हमने गैदर की थी ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज ऑफ SDLC. इसके अलावा जो टूल्स आप यूज़ करेंगे दैट वुड बी UML एंड डिज़ाइन पैटर्न्स. अब UML क्या है, डिज़ाइन पैटर्न क्या है, यही हम स्टडी करेंगे इन टुडेज़ लेक्चर. सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी लेक्चर, ट्रस्ट मी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल शॉर्ट लेक्चर in comparison to the other lectures. So first of all we have to see that क्वेश्चन आपके SLO बेस पे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है कि what do you know about UML in SDLC. So first of all you have to tell that UML stands for Unified Modeling Language. Okay, and it is a standardized visual modeling language. देखें, एक विजुअल डिस्प्ले होता है. फॉर एग्जाम्पल किसी भी पिक्चर को देख के
किसी भी कोई पिक्टोरियल फॉर्म है, कोई विजुअल है, उसको देख के आपको आइडिया हो जाता है सारे के सारे सिचुएशन का से या सिनेरियो का. फॉर एग्जांपल कोई भी पिक्चर या कोई भी पेंटिंग है दैट इज़ अबाउट द सीनिक ब्यूटी. ठीक है, सो ज़ाहिर ही बात है उससे जो है वो बेसिकली जो डिपेक्ट होता है दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ नेचर. ठीक है, इसी तरह जो भी आपका प्रपोज्ड सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है उसकी जो विजुअल मॉडलिंग है वो बेसिकली हम करते हैं थ्रू UML. अब ये कैसे है, आपके ऊपर से गुजर गई, डेफिनेशन नहीं समझ आई, कोई मसला नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन, आगे एग्जांपल्स दूंगी, आपको बहुत अच्छा क्लैरिफाई हो जाएगा. आपने फ़िलहाल 2 बातें याद रखनी हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ इट स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. अच्छा, वन मोर थिंग मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि मुझे लाइक 1-2 स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे, दे वर सेइंग कि मैम आप क्या करती हैं, आप समझाती तो इतना है नहीं, आप बस इंग्लिश पढ़ के बता देती हैं. ठीक है, तो बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पे समझाने वाली चीज़ होती है मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाती हूँ. इवन आपकी बुक में इतनी इलैबोरेशन नहीं होती जितना मैं डिटेल में चली जाती हूँ. ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें एज इट इज़ आपने अपनी बुक से ही याद करनी है, बिकॉज फेडरल बोर्ड का हम पार्ट हैं. ठीक है, SLO बेस्ड हो गया है, बट स्टिल हम वो थोड़ा बहुत जो रट्टा सिस्टम, आप उसको रट्टा सिस्टम नहीं कह सकते. अब फॉर एग्जांपल हम बच्चों को अगर सिखाते हैं A फॉर एप्पल तो A फॉर एप्पल एंड B फॉर बॉल. ठीक है, अब ये तो नहीं है कि हम उनके रट्टा लगवा रहे हैं भाई, कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करनी होती हैं. ठीक है, इसी तरह की जो UML है, UML स्टैंड्स फॉर, सो यू गाइज मस्ट नो कि UML स्टैंड्स फॉर. अब आपको इसको याद करना है, अब आप इसको बेशक रट्टा की कैटेगरी में डाल दें तो इट्स ऑल अप टू यू. ठीक है, बट ये है कि दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेमोराइजेशन, कि आपको ये चीज़ मेमोराइज होनी चाहिए कि UML स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. ठीक है, अच्छा एंड अच्छा अब ये है क्या, तो ये अब आपको समझने की एंड याद करने की चीज़ है कि इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड, एक स्टैंडर्ड है विजुअल मॉडलिंग का. ठीक है, विजुअल मॉडलिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन फेज. अच्छा, सिंपल ये 2 पॉइंट्स हो गए. नेक्स्ट भी हम देखते हैं कि नेक्स्ट ये है कि वी हैव यूज्ड UML इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डिज़ाइन सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर्स. तो सिस्टम डिज़ाइन में बेसिकली UML बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है. आप अपने यूनिवर्सिटी लेवल में जब आप डिग्री करेंगे बैचलर्स की, चाहे कंप्यूटर साइंस की करेंगे चाहे SC की करेंगे, तो आपको कोर्स पढ़ाया जाता है जिसमें UML के थ्रू जो है वो डिफरेंट डायग्राम्स, डिफरेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर्स की आप डायग्राम्स जो है वो सॉफ्टवेयर पे जो है वो क्रिएट भी करते हैं. आपके एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि UML डायग्राम ड्रॉ करें. फिर कौन सी UML डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है वो भी बहुत डिटेल में है. ठीक है, मैं आज के लेक्चर में थोड़ा सा आपको व्यू ज़रूर दूंगी, वो जस्ट ये है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए. ठीक है, बाकी जो है कि वी हैव टू स्टिक टू द टेक्स्ट बुक. आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें जितना भी मटेरियल है वी आर सपोज टू कवर दैट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने लर्न किया वो बेसिकली क्या था कि UML स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड what is UML या why UML is being used. So it's a standard visual modeling language. ठीक है, जो कि हम यूज़ करेंगे for the designing purpose, for the designing of systems or softwares, for the designing of proposed system or softwares to solve any problem, and this is being used in the software engineering. The next is it provides a common notation that allows developers, analysts, stakeholders to communicate and visualize different aspects of a system. Now this is very important कि एक विजुअल डिस्प्ले तो है. ठीक है, अब ये विजुअल डिस्प्ले अगर आप डेवलपर्स के साथ शेयर करेंगे, एनालिस्ट्स के साथ शेयर करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द जो स्टेक होल्डर्स हैं ऑफ दैट प्रोजेक्ट, तो उससे क्या होगा, it will make the communication easy between all these entities, between all these individuals. इन सब individuals के दरमियान में थोड़ा आपका सिस्टम या वो जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं वो कम्युनिकेट करना ईजी हो जाएगा. उसको देखते साथ एक टेक्निकल इंसान को पता चल जाएगा. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है.
अब वो प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज डॉक्टर राइटिंग्स एक आम इंसान को तो समझ नहीं आती, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही उसको लेके जाते हैं फार्मेसी पे मेडिसिन लेने के लिए, या फिर उसी रिपोर्ट को या उसी प्रिस्क्रिप्शन को अगर कोई और डॉक्टर रीड करता है तो वो बहुत इजीली रीड कर लेता है, ठीक है, बिकॉज टेक्निकल लैंग्वेज को समझना उन इंडिविजुअल्स के लिए बहुत आसान है। इसी तरह एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर का यूएमएल लैंग्वेज के थ्रू जो है वो एक विजुअल सा मॉडल बना दिया जाता है, एंड उसको चाहे डेवलपर्स देखेंगे, चाहे एनालिस्ट देखेंगे, चाहे कोई डिज़ाइनर देखेगा, तो उस टेक्निकल चीज़ को उसके लिए समझना जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई वी यूज़ UML इन SDLC। इन SDLC SDLC में भी इन डिज़ाइन फेज ऑफ SDLC, ठीक है। वाई? बिकॉज it makes the communication easy between the developers, analysts, and other stakeholders of the project, and it makes easy to visualize different aspects of the proposed system and software. I hope that's very clear. Just 3 बातें हमने इसमें डिस्कस की, तीनों की तीनों ही आपने याद रखनी है। UML stands for what is UML, ठीक है, and why to use UML. It stands for exact, मेरे साथ साथ रिवाइज करें आप कि it stands for Unified Modeling Language, 1 point, अभी याद कर लें, just 3 seconds, याद हो गया। Next is it is a standardized visual modeling language है, ठीक है, that is used in software engineering to design systems or softwares. Number last पे जो है वो ये है कि it provides the best communication between the developers, analysts, and other stakeholders. Okay, we are done with this question. Moving next, we are having another question, that is why to use UML and design patterns in design phase. Very important. ये book में जिस तरह से भी है आपने इसको as it is याद रखना है, ठीक है। The answer is UML and other design patterns are very valuable tools for software engineering to build. Number 1, क्या क्या फ़ायदा होगा इसको यूज़ करने से? पहला फ़ायदा ये है कि you will have high quality. Number 2, robust. And number 3 is efficient software solutions, ठीक है। अगर तो UML का यूज़ किया जाएगा and design patterns का यूज़ किया जाएगा in the design phase to design the softwares, to design the systems, so that the software engineering would be capable enough to build high quality, अच्छी quality के, robust होंगे and efficient software solutions होंगे उस system या software के जो आप बनाने जा रहे हैं, ठीक हो गया। robust होता है बहुत स्पीडी, बहुत तेज़, और एक बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड वाला, ठीक है। एफिशिएंट ज़ाहिरी बात है जिसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जिस सिस्टम या सॉफ्टवेयर की, ठीक है। ओके, नाउ द UML इन डिज़ाइन फेज, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। UML डायग्राम में फर्दर बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है। ये जो है दिस इज़ द क्लास डायग्राम, आप ऊपर मेंशन भी हुआ है, दिस इज़ द क्लास डायग्राम। आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, प्रोडक्ट है, कस्टमर है, अकाउंट है, ऑर्डर है, तो उसका मतलब है कोई ना कोई कस्टमर होगा जो कि ऑर्डर प्लेस करेगा, उसका कोई ना कोई अकाउंट भी है, किसी ख़ास प्रोडक्ट का ही ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा। अच्छा, इसमें डिफरेंट एंटिटीज़ शो हुई हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स शो हुए हैं, एंड फिर एंटिटी रिलेशनशिप भी शो हुआ है, 1 to 1, many to 1, जो भी है। दिस इज़ ऑल अबाउट नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट टू मेक यू फेमिलियर कि इस तरह की UML डायग्राम्स होती हैं। आपने ना तो इसको समझने की ज़रूरत है इतनी, और ना ही इसको आपने प्रिपेयर करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम। मूविंग नेक्स्ट, मैं आपको और देती हूँ कि UML की जो डायग्राम्स बनती हैं वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे बनती हैं। अब ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है इसमें आपको सॉफ्टवेयर भी नज़र आ रहा है कि सॉफ्टवेयर है, आपको लेफ़्ट जो साइड है उस पे वो सारे उसके सॉफ्टवेयर के टूल्स नज़र आ रहे हैं। उन टूल्स को यूज़ करते हुए जो है वो आप एक
UML डायग्राम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर की। सो इस तरह से बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो किसी भी प्रपोज या सिस्टम या सॉफ्टवेयर की UML डायग्राम क्रिएट करते हैं सबसे पहले इन द डिज़ाइन फेज़। ठीक है, डिज़ाइनिंग इस तरह से की जाती है। अब दैट इज़ द विजुअल डिस्प्ले, इसको देखते साथ ही टेक्निकल जो एंटिटीज़ होती हैं, जो टेक्निकल इंडिविजुअल्स होते हैं उस प्रोजेक्ट के, उनको आइडिया हो जाता है कि बेसिकली व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट्स द डिज़ाइन ऑफ अ SDLC. Okay, moving next, again this is not the part of your course. Again we have different types of UML diagram. This is again not the part of your course. इसमें structural UML diagrams different होती हैं, behavioral different होती हैं। behavioral में आप activity diagram, use cases, different further types की, इसी तरह structural में you have class diagrams, object डायग्राम्स, कंपोनेंट डायग्राम्स। तो ये सारी की सारी डिटेल में आप लोग डिग्री में जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप लोगों ने ये समझना है कि व्हाट इज़ UML एंड डिज़ाइन पैटर्न्स, दैट्स इट। ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न्स हम वो तो हम पढ़ चुके हैं कि UML क्यों यूज़ करते हैं। फर्दर यहाँ पे भी आई थिंक yes, this is again the question, why to use design patterns in design phase, but उससे पहले जो है वो हमने डिज़ाइन फेज़ को देखा ही नहीं, सॉरी हमने डिज़ाइन पैटर्न्स को देखा ही नहीं कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या चीज़ है। तो डिज़ाइन पैटर्न्स जो हैं दैट इज़ अगेन प्ले अ वेरी पिवटल रोल आर इम्पॉर्टेंट रोल इन SDLC बाय ऑफरिंग रीयूजेबल सॉल्यूशंस। अच्छा, मैं यहाँ पे होल्ड करती हूँ, पॉज करती हूँ। देखिए, जब भी आप डिज़ाइनिंग करते हैं ना किसी भी प्रपोज सिस्टम या सॉफ्टवेयर की, तो डिज़ाइनिंग फेज़ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं डिफरेंट सिचुएशंस में या डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू गाइज आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यू गाइज आर कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड मोस्टली कंप्यूटर साइंटिस्ट तो नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही इस डिज़ाइनिंग फेज़ में आते हैं। तो फॉर एग्जांपल यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर and you have to design a UML diagram, or you can say you have to design the architecture of a proposed system or a software to solve some problem. ठीक है, अच्छा, अब जो भी देखें, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी काम कर रहे हो और उस पर प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये तो फिर सिस्टम की एंड सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग फेज़ है, इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, कैसे कैटर करना है। ठीक है, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रॉब्लम आएगी तो आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है, सो यू गाइज मस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। एंड उसमें यह है कि आपका कम टाइम लगेगा और मैं आपको एक स्टैंडर्ड बात बताऊंगी। ठीक है, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए ये सोल्यूशन है एंड आप उसको इस तरह से इस प्रॉब्लम को डील करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं वो रीयूजेबल सॉल्यूशंस हैं। क्या हैं? जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं वो रीयूजेबल सॉल्यूशंस हैं। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है डिज़ाइन फेज़ में, तो आपसे पहले जो एक्सपर्ट डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी कुछ सॉल्यूशंस रखे हुए हैं आपके लिए। कैसे? वो एक तरह के टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपको जब भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस होती है, आप उसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उससे एसोसिएटेड जो सॉल्यूशन होगा वो उसको रीयूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आजकल तो बहुत ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हैं यूट्यूब के जो मैं थंबनेल जो क्रिएट करती हूँ मैं कैनवा पे करती हूँ। तो कैनवा पे क्या है, देखें मैंने डिज़ाइनिंग भी की हुई है। आप स्क्रैच से भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपना थंबनेल। स्क्रैच का मतलब ये है कि बिल्कुल स्टार्ट से अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ करें, अपनी मर्ज़ी का लेआउट, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन चूज़ करें। ठीक है, तो आप थंबनेल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट कैनवा जो है दैट इज़ ऑफरिंग अस द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ देयर टेम्पलेट्स। हम उनका टेम्पलेट यूज़ करते हैं,
फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई मैंने थंबनेल बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, उनका टेम्पलेट जो है वो यूज़ करूँगी, इसमें अपने अकॉर्डिंगली चेंजिंग्स करके और जो है वो मैं उसको यूज़ कर लूँगी, ठीक है। इसी तरह से जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं वो रीयूजेबल सॉल्यूशंस हैं। आप जब भी डिज़ाइन फेज़ में इनकाउंटर करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के साथ, तो आप क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन, उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि प्रमोटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, enhancing communicating among team members and contributing to the creation of maintainable and scalable software systems। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि डिज़ाइन पैटर्न्स, एक तो बात कंफर्म हो गई कि दीज आर रीयूजेबल सॉल्यूशंस जो हम यूज़ करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम आएगी डिज़ाइन फेज में, ठीक हो गया। अब इन बेस्ट प्रैक्टिसेस, दीज आर बेसिकली द बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्यों ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? बिकॉज दे आर सजेस्टेड बाय द एक्सपर्ट डिज़ाइनर्स, ठीक है। ज़ाहिर बात है, फर्स्ट टाइम तो ये नहीं करने जा रहे ना, आपसे पहले भी बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी इस सारे प्रोसीजर से गुज़रे हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी, फिर उन्होंने क्या कहा कि हमारे बाद भी जो लोग आएंगे उनको भी सेम इसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो है वो टेम्पलेट बना दिया कि अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी तो आपने ये सोल्यूशन जो है ये यूज़ कर लेना है। सो दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन पैटर्न, ओके। तो फर्स्ट थिंग इज़ design patterns are reusable solutions. The second is it promotes best practices to solve the problem, ठीक है। and the third one is it enhances the communication among team members। तो जाहिर बात है, to use design patterns one has a very good communication with other team members, ठीक है। अच्छा, and contributing to the creation of maintainable। अब ये है कि डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करते हुए आपके पास अगेन वही जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे, आपके पास एक रॉबस्ट किस्म का, एक एफिशिएंट किस्म का जो है वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि क्रिएशन ऑफ मेंटेनेबल, आपके पास जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आते हैं उनकी स्केलेबिलिटी का टॉपिक अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही बिकॉज उसके लिए आई सेपरेटली जब मैं उसका टॉपिक पढ़ाऊँगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो जस्ट होल्ड ऑन। तो ये है कि मेंटेनेबल मीन्स कि ऐसा सिस्टम या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको मेंटेन करना ईजी हो। ज़ाहिर बात है, जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको चीज़ें मेंटेन करनी एंड उसकी जो मैनेजमेंट है दैट वुड बी मोर ईजी फॉर यू गाइज, ठीक है। अच्छा, सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिज़ाइन फेज। मूविंग नेक्स्ट, that was all about the design patterns. Moving next, we are again having the different types of design patterns which is not the part of our syllabus. यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, किसी ने अगर पढ़ना है पढ़ सकता है, बट बेवकूफ़ी होगी कि कोई डीप जो है वो डीपली जाके इन सारी चीज़ों को देखे। सो आज के लेक्चर में हमने जो कवर किया दैट वाज अबाउट, ओके, नेक्स्ट इज़ डिज़ाइन फेज स्ट्रक्चर्स। डिज़ाइन फेज स्ट्रक्चर्स बेसिकली हमारे पास दो तरह के हैं। द फर्स्ट वन इज़ एल्गोरिदम एंड द सेकंड वन इज़ फ्लो चार्ट। ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो कवर किया दैट वाज द डिज़ाइन फेज में हमने UML की बात की और हमने बात की डिज़ाइन पैटर्न्स की। दो चीज़ें जो हैं वो आपने आज के लेक्चर में समझनी भी हैं एंड उनको मेमोराइज भी करना है। सो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू गाइज आर feel free to ask and you guys may drop your words in the comment section. In case of contact, the contact number and